सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, मैचिंग करने के लिए हमें क्या क्या देखें। एज वी टोल्ड यू कि वी कैन नॉट लुक एट जस्ट the Astkut Milan. That is not sufficient. Astkut Milan is not sufficient. Then what all we have to see? कैसे देखें कि ये मैचिंग ठीक है? A good relationship can be determined from Lagna or Rashi. If their lords are friendly, then the matching will be good. Now we can divide all the Lagnas, 12 Lagnas, into two groups, Dev group or Asur group. Dev group, what is Dev group? Dev group means Mesh, Aries. Mangal, the Lord is Mars, Jupiter, Sun, Moon. That is Dev group. If the Lord is Venus, Mercury, and Saturn, then it is Asur group. And आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि मंगल, गुरु और चंद्र और सूर्य आपस में मित्र है। हाँ जी। और शनि, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं जी। ये राक्षस हैं और वो बाकी 4 देव ग्रुप में है। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड, दोनों का लग्न लॉर्ड एक ही ग्रुप का है तो दैट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। दोनों की राशि लॉर्ड भी अगर सेम ग्रुप के हैं, मान लो दोनों के लग्न लॉर्ड देव ग्रुप के हैं, राशि लॉर्ड असुर ग्रुप के हैं, तो भी अच्छे हैं। और अगर एक का लग्न लॉर्ड देव ग्रुप का है और राशि लॉर्ड असुर ग्रुप का है, दूसरे का उल्टा है कि राशि लॉर्ड देव ग्रुप का है और लग्न लॉर्ड असुर ग्रुप का है, तब भी वो मैचिंग अच्छी मानी जाएगी। If Rashi lords and Lagan lords, they should belong to a similar group, and then it's a good match because they will have a good understanding or relationship, or their way of working will be similar. Second point is there should not be Sadesati or Astamdaya of the partner just after marriage. Yeah, at the time of marriage. साढ़े-साती नहीं होनी चाहिए, अष्टमदया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि if the time just after the marriage is bad, then they may not have a good relationship, and that can create problem. Normally, the problems occur within 1 or 2 years of the marriage. After that, the chances of break become much less. पहले साल में ही शादी टूट जाती है, टूटनी है तो, नहीं तो फिर तो 10% केसेस में बाद में भी टूटती है, लेकिन 10%, 90% तो बिगिनिंग में ही टूट जाती है। तो इसलिए एटलीस्ट एट दैट टाइम देयर शुड नॉट बी अ बैड टाइम। एंड इफ मार्स और अदर प्लैनेट्स आर प्लेस्ड बैडली इन आवर हाउस, दे शुड नॉट बी बैडली प्लेस्ड इन द अदर हॉरोस्कोप। नॉर्मली वी से दैट if one is Mangli, the other should also be Mangli. Normally what we have seen is that if both the horoscopes are bad, suppose Saturn is sitting in the 7th house or sitting in the 9th house, or Mars is sitting in one horoscope in the 5th house and the other horoscope 9th house, then there are all chances of a break. If one horoscope is bad and other is not bad, then the marriage may survive. May survive. It is not necessary that it will survive, but it can survive. So at least one horoscope should be neat. If suppose you are looking for a groom, एक लड़का देख रहे हैं अपनी कन्या के लिए,
और उसकी हॉरोस्कोप में मंगल 5वें घर में बैठा हुआ है, मीन्स शी इज डेस्टाइन्ड टू हैव अ बैड फैमिली लाइफ. नाउ हाउ टू कंपेंसेट दैट? ऐसे मैचिंग करें जिससे कि उसकी उसकी फैमिली लाइफ खराब ना हो. तो उसके लिए ऐसा ही करना पड़ेगा कि हमें ऐसा देखना पड़ेगा जहां पर मंगल खराब नहीं होता है, मंगल अच्छा होता है, उन ग्रहों में, उन भावों में मंगल दूसरे लड़के का हो. तो then we can save the marriage if the horoscope of the boy says that Mars is good. Both the horoscopes should not be bad, unlike both should be Mangli. Okay. It is not advised to have Mars in the 5th house of female and 9th house of male, or 4th house of male and 2nd of female. ऐसा combination तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. This combination, if it exists, it will lead to break in marriage only, nothing else. और सर अगर अपोजिट हो जाए? अपोजिट हो जाए तो थोड़ा बचत है. ठीक. मीन्स द 5th हाउस में मेल का है मांग, हाँ. और 9th हाउस में फीमेल का है, then it is not that big a problem. ठीक है सर. Exalted Saturn should not aspect 7th house in the partner's horoscope. Normally, like if 10th house में exalted Saturn है, या लगन में exalted Saturn है और 7th हाउस को देखता है, या आपके 5th हाउस में exalted Saturn है, तो that is a very bad case and it can create problem. 7th हाउस में exalted Saturn है सर. तो so what we have to see is that both Lagna and Rashi, they are friendly to each other, and the planets are placed in a right manner. और अष्टकूट मिलान we will not see, we will not check. अष्टकूट मिलान से तो सिर्फ इतना ही जानेंगे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहने वाली है, nothing more than that. We will not check for divorce. Okay. This is how we have to find it. सर अगर exalted Saturn है 7th हाउस में, तब भी वो सेम ही है जो लास्ट पॉइंट है. सेम है, हाँ वो भी है, वो भी है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ. एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिखाई थी शायद, if I remember, I showed you this example. Did I? मैंने दिखाया था, ये नहीं दिखाया था आपको? नहीं दिखाया था सर. हाँ नहीं सर, नहीं दिखाया कि ये एक लड़के लड़की की शादी होते ही टूट गई. शादी होने के 6 महीने में टूट गए, ब्रेक हो गया. Why it happened? Now you can see it very easily, clearly. वैसे तो दोनों के लगन सेम है, फ्रेंडली हो, और चंद्रमा इधर धनु का है, इसमें वृष राशि का है. So they are not friendly. Moon Rashi lords are not friendly, but still they belong to different group, but still मैत्री तो मरकरी और वीनस में मैत्री रहती है. मरकरी ने जुपिटर, वीनस होना चाहिए था, मून इन जुपिटर. There is something wrong here, but their good points are being matched. अब यहाँ पर देखिए, आपको शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम को देख रहा है. हाँ, मार्स भी जो है साथ में इसको सप्तम को देख रहा है, मार्स भी देख रहा है. जुपिटर इन 9th house, we say that Jupiter should not be in the 9th house. और फीमेल के केस में Saturn is in the 6th house.
we say that Saturn should not be in 6 and 11. 6th then. और सर इसका जुपिटर भी इधर 11th Mars हाउस में है। and Saturn aspecting Jupiter. Mars and Saturn are aspecting each other. Mars is 7th lord and Saturn is aspecting the 7th lord. Jupiter is in 11th, which is not supposed to be good. So Jupiter aspecting 7th lord Mars. Jupiter is aspecting 7th lord Mars in both the cases. Jupiter's aspect over Mars is also not considered good. Though in traditional astrology it is considered good, but normally it creates problems. Jupiter's aspect over Mars or Jupiter's association with Mars always causes problems. This हाँ is सर वैसे this is नॉर्मली तो for यही कहते हैं हाँ, this is for normally- marriage या generally कोई भी situation में Mars Jupiter combination हाँ, अच्छा normally, anywhere. It is not considered good. तो वैसे तो friendly है ये और Mars Friendly, but it does not give good results. This is an exception. Jupiter with Mars does not give good results. सर अगर मार्स नीच का हो, जैसे मार्स है कैंसर साइन में और जुपिटर भी वहीं पर है, उच्च का जुपिटर हो गया और नीच का मार्स हो गया, तब फिर क्या होगा उसका? Still, that combination is not good. For family life, it is not good. It may delay marriage or it can cause trouble in the marriage. सर ये वैसे ये जो कॉम्बिनेशन है मार्स के लिए ठीक रहेगा क्योंकि वो जुपिटर के साथ होगा नहीं होगा Jupiter Mars combination is no good for marriage. only for marriage Yes, only for वैसे ठीक है ये वैसे ठीक है. ओके सर अगर मार्स का एस्पेक्ट हो तो भी वो ठीक नहीं होता है. देखिए मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी होगा. Mars and Saturn, Mars and Jupiter in the 7th house or elsewhere. They give late marriage or break in marriage or no marriage. So you can टुगेदर और एस्पेक्ट होने से भी प्रॉब्लम होता है. एस्पेक्ट भी मतलब एसोसिएशन हो गया ना, जुपिटर मार्स एसोसिएशन हो गया ना. So युति का भी Jupiter Mars association is not good. Though in traditional astrology it is supposed to be very good, it destroys the ill effect of Mars, हाँ जी but it practically does not do. It destroys the marital life. किसी भी हाउस में होगा कहीं पे भी हो. 7th हाउस में होगा तो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, कहीं और होगा तो कम डिस्टर्ब करेगा. अगर उससे कोई संबंध है 7th हाउस का, एस्पेक्ट है 7th हाउस पर, तो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा. और भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक सैटर्न एस्पेक्टिंग 7th हाउस, मतलब एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड सैटर्न एस्पेक्टिंग द 7th हाउस causes late marriage or break in marriage or no marriage. Okay, and strong and weak Mars in the 7th or 10th or aspecting 7th, that causes problem. 10th हाउस भी बहुत प्रॉब्लम करता है मार्स के लिए. सैटर्न के लिए भी 7th हाउस प्रॉब्लम करता है, लेट मैरिज करा देता है. 7th हाउस में सैटर्न हो तो भी वो लेट मैरिज करा देता है. और वीनस और जुपिटर डेबिलिटेटेड इन 7th और elsewhere. Jupiter debilitated, Jupiter is bad, whereas Mars and Saturn, either way it is bad. Exalted and debilitated, both ways it is bad. Jupiter only debilitated is bad. Exalted is not that bad. Similarly, Venus exalted is not bad, but Venus debilitated is bad. आपका एक रिकॉर्ड वीडियो देखा था आपका ही, उस पे पढ़ा था YouTube पे, तो उसमें सर हमने एक वीडियो देखा था आपका, उसमें जुपिटर एक्सॉल्टेड भी आपने बहुत बैड बताया था. उतना खराब नहीं है जितना कि डेबिलिटेटेड जुपिटर सर खराब. कोई एक एग्जांपल लिया था आपने करंट है जो भी वो भी है, लेकिन मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ. कंपैरेटिवली जुपिटर
उच्च का होके भी बहुत लेट मैरिज कराता है, लेकिन लेट मैरिज करा सकता है। अगर नीच का जो गुरु होगा 7th हाउस में तो वो शादी करने नहीं देगा। जुपिटर वैसे भी सर 7th हाउस में तो बहुत खराब पोजीशनिंग भी है। हाँ, और मार्स और शनि आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वो भी शादी रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। सर इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे ये लेट ब्रेक और नो मैरिज का है, अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हमें क्या एक्चुअल में ये भी पता लग सकता है कि कब लेट होगी कब नो मैरिज होगी, ये पता लग सकता है क्या? नहीं, ये नहीं पता चल पाएगा। नो किसी भी मैरिज तरीके से एंड हम लेट चार्ट मैरिज, देख के नहीं पता लग लेट सकता। मैरिज एंड नो मैरिज आर फॉर रूल्स आर सेम। अच्छा, वैसे अगर कोई हमारे पास आता है इट में उसका गेट टू लेट, और अब देखिए, अभी इसमें देखिए आप, ये मैरिड एट 35 36, ये अनमैरिड है, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा ना। अब यहाँ पे क्या है, मार्स इज देयर इन द 10th हाउस जी। एंड exalted Saturn is exalted, so that itself is a problem. It is aspecting the seventh house lord Mercury. Exalted Saturn is aspecting Mercury, so there is late marriage. सर सैटर्न एग्जॉल्टेड जो रिजल्ट है लेट मैरिज के लिए, हाँ, मेल और फीमेल दोनों का ही देखना है, एक ही सेम हाँ, दोनों में दोनों में देखना, ठीक है। ये मंगल मार्स इन द 10th हाउस अगेन, it is not good, and Saturn exalted, sir. Saturn is exalted and it is with the 7th lord. So, sun, it is with the 7th lord sun. जी, कनेक्शन है। It is also in the moon Rashi. It is with the moon. So it is aspecting the 7th house from the moon also. Moon chart consider करेंगे. So Saturn is aspecting the 7th house. Exalted Saturn is aspecting the 7th house. That's not good. यहाँ पे 11th house में Saturn, हम otherwise also we consider it bad for matrimonial life. Saturn in the 11th house is not good, so that is also one point. So that is why the marriage got very much delayed. Now they are unmarried. Their age is 65 born. 65 born means 35 and 21. It is Around 55, 56 years old. 56 years old. And still this is for a girl, so she is still unmarried at the age of 56. So why it happened? Now you look at Mars is in the 5th house. We consider Yes. Mars in the 5th house to be bad, and Rahu in the 11th house, that is also considered bad. और एस्पेक्टिंग सैटर्न को भी है मार्स के साथ, चौथी और दृष्टि Saturn is 7 के लॉर्ड पे हाँ, मार्स की दृष्टि भी है। Mars सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं एक Mars दूसरे is aspecting Saturn. एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग मार्स। Saturn is aspecting Mars. Okay. And it is also the 8th, 10th lord. Mars is also the 10th lord. So this is fairly a good reason for not getting married. इसमें देखिए डायरेक्ट दो रूल जो है ना, मार्स 5th हाउस, राहु 11th हाउस, 11th house. मार्स सैटर्न म्यूचुअल एस्पेक्ट। दूसरी पत्री में देखिए सैटर्न, दिस इज फॉर ए मेल, this is for a male, 68 born. 68 means 32 plus 21 is 53. 53. And he is not looking for a marriage at all. So Saturn is, though it is debilitated, so debilitated Saturn also destroys equally well, and it is aspecting the 7th house. And from moon chart, in the moon chart, it is in the 7th house itself. है ना? बिल्कुल सर। जी। और Mars is aspecting the 7th house. Direct 7th house Is and 10th aspecting house. the 7th house, and it is aspecting 7th house. And it is in the 10th house. From in the moon chart, it is in the 10th house. राइट। हाँ जी बिल्कुल। सर ये मेल का है फीमेल का है?
ये मेल का है। हाँ तो मेल के लिए मार्स एंड 4th इज नॉट गुड, आपने बताया पॉइंट जो है। तो ये भी इसमें भी दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें अब नाउ दे आर अनमैरिड, he tried for a marriage also, they both of them tried for marriage, but somehow it never clicked. तो ऐसा ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता लेट मैरिज में और नो मैरिज में, दोनों के लिए प्लैनेट सेम है। सर इसमें एक पॉइंट है और एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे पहले दो केस में सैटर्न एक्सॉल्टेड है और उनकी शादी हुई है, और थर्ड लेट हुई है, और थर्ड फोर्थ में सैटर्न एक्सॉल्टेड नहीं है, फोर्थ में तो नीच का है। तो सैटर्न के बारे में जैसे भी कहा जाता है कि इट डिलेज बट इट डज नॉट डिनाई, तो उसने डिले कर दिया। अगर सैटर्न पॉजिटिव है जैसे एक्सॉल्टेड है तो उसने डिले करा बट डिनाई नहीं की रिंग मैरिज। और इसमें अनमैरिड में स्पेशली फोर्थ में अभी इस पर्टिकुलर केस में ऐसे कह सकते हैं, बट सैटर्न एक्सॉल्टेड सैटर्न हैज डिनाइड इन मेनी केसेस आल्सो। अच्छा ओके, सो ये आपको मैं ये दिखाना, ये भी देख लीजिए, अगर इन्हीं पत्री में आप अगर वैसे कोई रीजन ढूंढेंगे तो आई डोंट थिंक यू कैन रियली सर्च फॉर ए रीजन। अब इसमें हाँ सर, क्या रीजन होगा कि मंगलिक भी नहीं है और लगन में अपना 7th लॉर्ड बैठा है, अपने 7th हाउस को देख रहा है, हाँ तो शादी क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक टाइम पे होनी चाहिए थी, अर्ली होनी हाँ चाहिए सही, थी, बिल्कुल। क्यों नहीं होनी चाहिए थी। अब इस केस में देखें तो चंद्रमा जो है अपना लगन में बैठा है, अपना स्वग्रही लगन में लग्नेश बैठा हुआ है, हाँ, और यहाँ शनि जो है वो भी अपने स्वग्रही बैठा हुआ है हाँ जी, ना। तो इसमें भी शादी क्यों नहीं होनी चाहिए थी। वीनस भी पंचम भाव में बैठा हुआ है, मंगल अगर स्वग्रही बैठा हुआ है, कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है कि जो कि आपको दिखा रहा हो कि शादी टूट सकती है या लेट हो सकती है। लेकिन अभी जो नए फॉर्मूले हैं वो अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्लियरली नजर आता है कि क्यों